थांबायचं मंजुश्री आपण की सुरू करायचं? 59 झाले आहे. थांबूया 5 मिनिटं. हा, मी एक YouTube ऑन केलेलं आहे जस्ट. हा, 59 झाले आहे. अच्छा, थांबूया 5 मिनिटं. 5 मिनिटं थांबूया आपण. Good morning, Chaudhary sir. Should we start? सर आहेत का? जॉईन झालेत सर. म्यूट आहे त्यांचा माईक. नाही, हा म्हणूनच विचारलं एकदा. Actually we are live, so we should be careful. We are live. Good morning, sir. Good morning, madam. Can we start? Good morning, sir. Yes, you can start. My laptop is not giving me the link directly. That's Okay. why I have started my mobile. Okay, sir. You can. I hope it is convenient for you. Yes, I am convenient. Okay. Manjushri, we can start. Yes. Good morning, everyone. Honorable Chief Guest of today's function, Vice Chancellor of Rashtrasanta Tukroji Maharaj, Nagpur University, Dr. Subhash Chaudhary sir, Chairperson of the Board of Studies in English and Principal of Rajkumar Keval Ramani Girls College, Dr. Urmila Dabir Madam, Principal R.S. Munle Dharampet Arts and Commerce College, Dr. Tanuja Nafre Madam, Principal Mahila Mahavidyalaya, Dr. Vandana Bhagdikar Madam, all the members of the Board of Studies in English, all the members of the English teaching fraternity, and my dear students. I, Manjushri Sardeshpande, extend a hearty welcome to you all. As a part of collaborative teaching and learning activity, we, R.S. Munle, Dharampet Arts and Commerce College, Mahila Mahavidyalaya, and Rajkumar Keval Ramani College, in collaboration with the Board of Studies in English, are organizing this BA Semester 1 Compulsory English and English Literature online course. It is said that necessity is the mother of invention, and lo, the corona pandemic has opened up new vistas in teaching and learning. Though online teaching learning has its own challenges, no doubt, but it has solved many of our problems too, like handling large classes and giving individual attention to students. We can customize our modules the way we want according to the needs of our students. Already many teachers have taken up to giving live sessions and uploading videos on various topics. The students would be having the advantage to choose the one they like. They would get an opportunity to listen to the best and experts on the subject. Audiovisual aids help in the explanation of the concept effectively. Studying anytime, anywhere is definitely going to help students. As we have already started online teaching in our respective colleges, the students are also being educated to adapt to online teaching and learning, and as far as technology is concerned, they learn faster. The teachers are also learning to handle and make use of the resources available. This online teaching and learning will enable us to reach and help the students as well as teachers in rural and urban areas. With this mission, we have started to launch this collaborative teaching
and learning activity, which would be available on YouTube. As we have taken up BA Semester 1 Compulsory English and English Literature syllabus prescribed by RTM Nagpur University, I would like to invite the Chairman Board of Studies in English, Dr. Urmila Dabir, to talk to you about the course. But before that, I would like to request Dr. Anil Dorewar to introduce Dr. Dabir. Thank you, ma'am. I feel greatly honored to introduce you a very dynamic personality who is with us today on this occasion. She is none other than Dr. Urmila Dabir. Dr. Urmila Dabir is working as Principal and Head of the Department of English at Rajkumar Keval Ramani Kanya Mahavidyalaya, Nagpur. She has more than 30 years of teaching experience at both UG and PG level. She is one among the most active academicians working in the field of higher education. Dr. Urmila Dabir is actively working on different committees in different universities. To mention a few, she is the chairman of Board of Studies in English, Rashtrasanta Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. In addition to that, she is a member of Management Council, Senate, Standing Committee, Academic Council, Board of Examination and Evaluation, Disciplinary Action Committee in RTM Nagpur University, Nagpur. She is also working on different committees at Santa Gadge Baba Amravati University and also in Gondwana University, Gadchiroli. It is because of her important contribution she was awarded with Best NSS Program Officer, Best Teacher Award, and Dr. K. Krishna Kumar Gold Medal for Best Principal in 2019. Her contribution is noteworthy in the field of research as well. She has 7 books to her credit and published several research papers at a national and international level. She is the editor of Synacle, a peer-reviewed research journal. Her biodata is too big to read out in a few minutes. We are really fortunate enough to have such a lady with us today on this occasion. So once again, on behalf of all 3 colleges, I wholeheartedly welcome Madam Dr. Urmila Dabir to this inaugural program of online course. For further proceeding, over to Dr. Manjushri Sardeshpande, ma'am. Thank you, sir. I would now like to request Dr. Urmila Dabir to address the audience. Honorable Dr. Chaudhary, Vice Chancellor, Rashtrasanta Tukadoji Maharaj Nagpur University, Dr. Nafde, Principal of Dharampet Arts and Commerce College, Dr. Vandana Bhagdikar, Principal Mahila Mahavidyalaya, Dr. Manjushri Sardeshpande, Course Administrator, members of Board of Studies of English, resource persons for this online course, and dear students. The syllabi of compulsory English literature was changed from the session 2021. The present syllabi has been designed keeping in mind the needs and requirements of the undergraduate students who wish to develop their academic and communication skills. Our class of compulsory English consists of students from different linguistic background and abilities with regard to communication skills. An attempt, therefore, has been made to select short yet engaging reading text so that students find it entertaining, enlightening, and interesting also. The prose poetry has been prescribed, which is a judicious mix of contemporary and traditional. But the common thread running through them is that they all espouse important values and principles of life. The aim is to provide room to respond to the text and discuss them in the classroom, thereby fostering their linguistic and communication skills. In compulsory English, we are proud to introduce a smart app so that the student can access question answers, grammar compositions, and all the other multiple choice questions on their mobile phones also. English literature syllabus is designed
to introduce them to the postgraduate course. And the postgraduate course has been designed to prepare them, or rather introduce them to prepare themselves for the NET and SET examinations. The syllabi of all the semesters introduce them to the different ages of literature, right from the Elizabethan to the modern times. The members of the Board of Studies and other distinguished members have contributed a lot in designing the present UG and PG syllabus. Taking into consideration the present scenario, as Manjushri said, we have been able to reach to the students only online. This online course is designed to reach to a larger number of students, not to only the college students of our own college, but to a larger students which are there, due to the change in the mode of teaching and learning process. Faculty of various colleges are involved as resource persons to give a different experience of learning. Being online, students from Nagpur and rural areas also can join and be benefited. The whole syllabus will be taught to the students, and I'm proud to say that even the study material would be developed during this particular course. Evaluation process will also be undertaken. I hope this course will be benefited to the larger sections of the students. And we also plan to have a similar online course for postgraduate students also. I am grateful to the Honorable Vice Chancellor for his support and guidance, which is a source of encouragement for the teaching fraternity to undertake such ventures and enterprise in future also. Thank you very much. Thank you, madam. I would now request Dr. Madhavi Mohoril to introduce our inaugurator and chief guest, Vice Chancellor Dr. Subhash Chaudhary, sir. Dr. Madhavi. Is she audible, Manjushri? No, she is not audible. Madhavi, please unmute yourself. You are not audible, Madhavi. Am I audible now? Yes, now you're audible. Thank you, ma'am. A very good morning to all the dignitaries, respectable teachers, and dear participants. It is a proud privilege that today we have among us Honorable Vice Chancellor of Rashtrasanta Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur, Dr. Subhash Chaudhary ji, to inaugurate this online course. Sir has an extensive experience of 32 years in the field of education. 18 national international publications are to his credit, and 4 students are awarded doctorate under his able guidance. Sir has been awarded 1 patent and has completed 3 research projects. Sir has worked on apex bodies of Rashtrasanta Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur, like Academic Council, RRC, etc. Many national, international level conferences, workshops are conducted and organized successfully by Sir. He has taken lead to bring the skill-based granted projects at the institutional level. On behalf of Board of English and the host colleges, I welcome you, sir. Thank you so much. Manjushri madam, over to you. Thank you so much. Yes. I would now invite Honorable Dr. Subhash Chaudhary, sir, to enlighten us. Thank you. The organizer of this program, the chairperson of Board of Studies in English of Rashtrasanta Tukadoji Maharaj Nagpur University, Dr. Urmila Dabir, the most dynamic chairman of the
board, and who initiated this uh, innovative venture for the benefit of student. And R.S. Mundle Dharampet College, Mahila Mahavidyalay, Rajkumar Keval Ramani Kanya Mahavidyalay, all these agencies or the organizations came together to make this event a good venture for the student and have collaboratively organized this BA first SEM compulsory English and English literature, and that too it is online course. In view of the changed syllabus, and change is necessary, everyone knows, and it should be the part of the curriculum that after every 2 to 3 years there should be change in the syllabus also. uh, now, this is not the attempt to change only the syllabus, but the change in mode of teaching learning process for the students. This is very important aspect, that the change of mode of teaching learning process, which is the need of an hour, is required for the mm, change of the scenario, so degree holder or outcoming graduate students. Unless and until we change the mode of teaching learning process, simply change of syllabus would not work. The faculty of various colleges, the resource persons, also coming together to give a different experience of learning. As this program is being organized online, students from all corners can participate and get benefited. It is also the attempt has been taken to cover whole syllabus, and the whole syllabus would be taught. Also, study material would be provided. Exercises on grammar, question answer will be provided. That means a complete package is brought by this team, and which is which would be helpful for the students, uh, not only to come up with the result, good result, but at the same time it will imbibe the confidence in the student to have the communication skill. Because I think this syllabus is blended with the uh, grammar and text content, no doubt, but at the same time to boost up the skill of communication, and this would really be most helpful for the student. And the course is aimed at day-to-day evaluation also, and that too online. Uh, it is really required, because evaluation, unless and until the day-to-day evaluation is there, the attention of the student would not be the fruitful, or would not be 100%. This is the new type of venture and concept by the coordinative colleges in collaboration with the Board of Studies. Definitely, whatever this program is going on, videos will be available for student on YouTube. That is a very nice part, because even after completion of this program, the material and this complete videos or sessions will be available for the students, those who were not in position, or those who are not in position to come online for attending this program. So here I congratulate the organizing team, chairperson of Board of Studies, collaborating colleges for organizing such innovative ventures for the benefit of students of the university. Hope this program would be more beneficial to all students of our university in particular, and every stakeholders in general. Uh, I declare that the program is inaugurated, and I hope, or I wish the success in this program. And once again, I congratulate the organizing team.
Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable inputs and words of appreciation. Thank you very much. I would now request Dr. Vandana Bhaglikar, madam, to propose a vote of thanks. Thank you, madam. A warm and cherished morning to all. It is my proud privilege to propose a formal vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard to make the inaugural program of 2 weeks BA Compulsory English and English Literature online course a success. On behalf of the 3 organizing colleges and Board of Studies in English, I express my deep sense of gratitude towards our Honorable Vice Chancellor, Dr. Subhash Choudhury sir, who spent his busiest time gracing this occasion. Today, we had the opportunity to hear you, sir, and this is definitely going to encourage us for our future events. Thank you very much, sir. A special mention to our dynamic and active Board of Studies Chairman and Principal Rajkumar Keval Ramani Kanya Mahavidyalaya Nagpur, Dr. Urmila Dabir, for being the catalyst that inspired us to do our best and stand as a pillar of power. With deep sense of appreciation, we thank you, Madam, for all your efforts to bring to light the BA Part 1 Compulsory English and English Literature syllabus, and also for giving the motivating introductory remark. Thank you very much, Madam. I express my sincere thanks towards all the Board of Study members for their august presence today and support. Thank you. I am extremely thankful to the management committee members of 3 colleges, Dharampet Education Society Nagpur, Sri Shikshan Prasarak Mandal Nagpur, Sindhu Navyuvak Mandal Nagpur for their constant encouragement and cooperation. I am also thankful to Dr. Tanuja Nafde, Principal R.S. Mundle Dharampet Arts and Commerce College for her approval to host this event. Thank you, Madam. This type of event cannot happen overnight. The wheels started moving almost a fortnight ago. It requires planning and bird's eye for details. We have been fortunate to be supported by a team of very active and dedicated IQAC coordinators of the 3 colleges, Dr. Manjushri Sardesh Pandey, Dr. Anil Dodewar, and Dr. Madhvi Moril. We thank you all for making sincere efforts to make this event a success. I express my deep sense of gratitude towards all our resource persons who immediately gave consent to address the students. Thank you all for your support and cooperation. I'm thankful to all the faculty members present over here today. I'm grateful to all those who directly or indirectly contributed towards making this event a grand success. Thank you very much. Last but not the least, dear students, with your support and cooperation, this event have been possible. I sincerely appreciate your presence today and also urge you to attend all the lectures which have been organized for your benefit. Last, thank you all for your august presence here. Thank you very much. Thank you, madam. Dear students, we are going to start with our first session right after this inauguration session. So please stay, do not go away. We'll be starting in 5 minutes. Thank you. Dr. Deepti Jain. Yes, ma'am, I'm here. Yes. I'll make you the host so that you'll be able to share your screen. Okay. Okay, ma'am. Okay.
Okay, we'll start. Hello, everyone. So in continuation, we will start with Unit 1, Lesson 1, The Thief, written by Ruskin Bond. And we have a very young and dynamic resource person to deal with this lesson, Dr. Deepti Jain. Dr. Deepti Jain Thakre is working as an assistant professor in English at Anjuman Girls Degree College of Arts. She is the coordinator of NAC in college and actively involved in various programs undertaken for the development of students. She has to her credit many research papers presented and published in national and international journals. She is an ardent poet and she is the executive member of CLIck, which is Center for Literary Interaction and Creativity. So over to you, Dr. Deepti Jain. Thank you, ma'am. At the outset, I would like to thank the organizers, R.S. Mundle Dharampet Arts and Commerce College, Mahila Mahavidyalaya Nagpur, and Rajkumar Keval Ramani Girls College Nagpur, and all the stalwarts of English department who took this initiative so that the students are benefited from it. Thank you. Special thanks to Chairman Board of Studies Urmila Dabir ma'am and Manjushri ma'am. Okay, students, so we'll be starting with the first chapter, The Thief, right? Now, as ma'am told you, it's a story and it's written by Ruskin Bond. The Thief by Ruskin Bond. Now, I'll just give a brief introduction about the author and then we'll move on to the chapter. Okay, I hope everybody has a textbook, right? If you have it, well and good. If you don't worry. Okay. So Ruskin Bond, he is an Indian author. He was born in 1934 and is still there, right? He was born in Kasoli, Himachal Pradesh, and grew up in Jamnagar, Dehradun, and Shimla. Now he's written over 100 of short stories. Now, actually, we will recognize more if I tell you some of the name of some of the movies of which he is the author. Now, he is the author of the movie The Blue Umbrella, Saat Khoon Maaf, The Black Cat, and a blockbuster which was produced in 1980s, that is Junoon, right? So, and he is also the recipient of Sahitya Academy Award and Padma Shri Award for his contribution in children's literature. Now, as we move on to the text, The Thief, it's a short story about a teenager who offers to work for a young man named Arun in the hope of eventually stealing from him. So, to make things simpler, एक कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग सी, बहुत स्वीट सी कहानी है एक छोटे बच्चे की, एक चोर की कहानी है एक्चुअली, जो कि सिर्फ 15 साल का बच्चा है, बट हालत से मजबूर हम लोग बोल सकते हैं कि he was forced into रॉबिंग पीपल, यानी चोर वो अपने मर्जी से नहीं बना है, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे एज वी रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, तो विल गेट कि वो चाहता तो एक ईमानदार व्यक्ति बनना है, बट देन ही वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट दिस प्रोफेशन ऑफ रॉबरी. ठीक है, तो एक 15 साल का बच्चा है. Now it's as I told you, it's a story about a teenager. Now वो he actually comes across a person called Arun. एक अरुण नाम के लड़के आदमी जो है उसके अक्रॉस वो आता है और उसके साथ वो जुड़ जाता है ये सोच के कि मैं इसको इससे इसके जो पैसे हैं मैं चोरी करके निकल जाऊंगा, बट देन विल सी कि एंड में क्या होता है. सो विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट, राइट? नाउ इट्स I was still a thief when I met Arun. Now here I meaning the narrator. Now narrator, as I told you, यहाँ पे जो narrator है वो एक 15 साल का छोटा बच्चा है जो कि चोर है. तो whenever the word I comes, it's the narrator, that is the thief, right? So I was still a thief when I met Arun, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो जो नरेटर है जब वो अरुण से मिलता है तो वो सिर्फ 15 साल का बच्चा है, लेकिन चोरी करने में वो माहिर हो चुका है, इसीलिए वो बोल रहा है कि आई एम एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, राइट? नाउ वेयर डिड दे मीट? नाउ अरुण वाज वाचिंग अ रेसलर्स व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. नाउ रेसलर
हम सबको पता है रेसलर मतलब होता है कुश्ती, जो कुश्ती लड़ते हैं उनको रेसलर्स बोलते हैं, और कुश्ती का जो मैच होता है उसको रेसलिंग मैच बोलते हैं। तो जब ये जो चोर है, थीफ है, जो वो अरुण से मिलता है, तो अरुण उस समय एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। सो much luck of late and thought I might be able to get into this young person's confidence. और हुआ ये कि जब जो जो फ्रेंडली जो अपीयरेंस था, उसको देखकर उसको लगा ये इजी टारगेट है, इसको मैं लूट सकता हूँ, इससे मैं चोरी कर सकता हूँ। और एक्चुअली कुछ दिन हो गए थे कि उसका लेडी लक स्माइल नहीं किया था, इन द सेंस कि बहुत दिनों से उसने एक अच्छा हाथ नहीं मारा था। नाउ when he approached Arun, he seemed quite fascinated by the wrestling. Two well-oiled men slid about in the soft mud, grunting and slapping their thighs. When I drew Arun into conversation, he didn't seem to realize I was a stranger. तो जब ये अरुण के पास गया तो अरुण बहुत मन लगा के जो wrestling मैच है वो देख रहा था। दो लोग आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, है ना। टू वेल ऑयल्ड मैन, जो ऑयल लगा के उन लोग जो कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती हम सबने देखी है, राइट। तो दे वर जस्ट हैविंग दैट मैच। तो अब ये गया अरुण के पास जाकर खड़ा हो गया एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, राइट। और अरुण ने भी रियलाइज नहीं किया कि कोई एक अनजान इंसान मेरे बाजू में आके खड़ा हो गया और वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। सो how did he approach him? He said, you look like a wrestler yourself, I said. तो वो अरुण के पास जाकर खड़ा हो गया, उसको बहुत कैजुअली कि तुम खुद एक रेसलर लग रहे हो, यानी ऐसा लग रहा है कि तुम खुद कुश्ती खेलते हो। So do you, he replied, which put me out of my stride for a moment, because at the time I was rather thin and bony and not very impressive physically. And when Arun replied कि तुम भी तो एक पहलवान ही दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम भी रेसलिंग करते हो। तो अब जो थोड़ा सा जो नरेटर है, जो चोर है, वो एकदम अवाक रह गया, एकदम सरप्राइज रह गया, क्योंकि एक दुबला पतला सा वो लड़का था, तो वो किसी भी एंगल से कुछ यानी पहलवान तो नजर नहीं आ रहा था, आता था। बट अरुण ने जब उसको बोला तो ही वाज टेकन इन 2 मिनट के लिए कि भाई ये मुझे क्या बोल रहा है। बट कुछ सोचकर वो बोला, यस आई सेड आई रेसल समटाइम्स। लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। एंड ऑब्वियसली उसको यही था, अभी तो उसका इंटेंशन यही था कि मैं इसके पास जाऊंगा, इससे चोरी करूंगा। तो वो अभी यानी उस पीछे नहीं हटना चाहता था, वो सोच रहा था कि चलो ये जो भी बोल रहा है मैं हाँ मिलाता हूँ। तो उसने बहुत कैजुअली उसने बोला, हाँ मैं कभी कभी कुश्ती खेलता हूँ। एंड देन अरुण आस्क्ड, व्हाट्स योर नेम? दीपक, आई लाइड। और जब अरुण ने उससे पूछा कि आपका नाम, तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने झूठ में कहा मेरा नाम दीपक है। Deepak was about my fifth name. I had earlier called myself Ranbir, Sudhir, Trilok, and Surinder. And he said, अब जब इसने अपना नाम दीपक बताया तो दीपक ये इसका 5वां नाम था। एक्चुअली चोर लोग के कोई एक नाम तो होते ही नहीं है, इन द सेंस वो अपना असली नाम किसी को शेयर नहीं करते हैं। तो वो बोल रहा है ये 5वां नाम मैंने बताया, इसके पहले जब भी मैंने चोरी की, किसी ने मुझे मेरा नाम पूछा था तो उसने कभी अपना नाम रणबीर बताया था, कभी सुधीर, कभी त्रिलोक, कभी सुरेंदर, राइट। तो दीज वर द नाम। तो बस याद रखना आप लोग कि इस बार उसने अपना नाम दीपक बताया था, राइट। Now, after this preliminary exchange, Arun confined himself to comments on the match, and I didn't have much to say. अब ये जो थोड़ा सा आपस में कॉन्वर्सेशन हुआ, भाई तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ये है, तुम रेसलिंग करते हो, ये सब छोटी सी थोड़ी सी बात होने के बाद वो फिर अरुण फिर से रेसलिंग मैच देखने में लग गया। और फिर इसने कुछ उससे बोला नहीं, जो अब हम लोग उसको दीपक करके बुला सकते हैं। तो दीपक ने उससे कुछ बोला नहीं।
After a while, he walked away from the crowd of spectators. I followed him. फिर उसके बाद अरुण थोड़े देर मैच देखकर फिर वो अपने घर जाने लगा, तो वो क्राउड से वो निकल गया. अब जब वो जाने लगा तो दीपक जो है, नरेटर जो है, उसने उसको फॉलो किया. हेलो, ही सेड, एंजॉयिंग योरसेल्फ. और फिर उसको बड़ा अजीब लगा अरुण को कि मेरे पीछे पीछे आ रहा है, बट स्टिल ही सेड कि एंजॉय कर रहे हो अपने आप को. I gave him the most appealing smile. I want to work for you, I said. और उसने बहुत ऐसे स्वीट सी स्माइल, बहुत अपीलिंग स्माइल, बहुत अट्रैक्टिव स्माइल करके बोला कि I want to work for you. He didn't stop walking. And what makes you think I want someone to work for me? अब वो चलता ही रहा अरुण, and he said कि तुमको क्यों लगता है कि मुझे कोई चाहिए मेरा काम करने के लिए? And Deepak said, well, I have been wandering about all day looking for the best person to work for. When I saw you, I knew that no one else had a chance. अब हमको पता चल गया है कि दीपक जो है वो एक चोर है. अब चोर लोगों के जो टैक्टिस रहते हैं, फ्लैटर कर रहा है, वो उसको बटरिंग कर रहा है, मस्का मार रहा है, तो बोला, उसने क्या बोला कि मैं पूरे दिन से घूम रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ लोगों को, और मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए मैं काम कर सकूं, और तुमको मुझे देखकर ऐसा लगा कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यानी तुम सबसे अच्छे इंसान हो सकते हो जिसके लिए मैं काम करूं. एंड ही वाज जस्ट फ्लैटरिंग, राइट, वो बटरिंग कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था ये मैं इसके साथ हो लूंगा और फिर मैं इसको लूट के चला जाऊंगा. यू फ्लैटर मी, ही सेड. और अरुण को समझ गया कि ये बटरिंग कर रहा है, ये फ्लैटर कर रहा है, मुझे मस्का मार रहा है, बट एंड ही सेड ऑल्सो यू फ्लैटर मी. दैट्स ऑल राइट. एंड उसने, दीपक ने बहुत ही अपीलिंग अगेन वे से उसको कि हाँ ठीक है ना, मैं बटरिंग कर रहा हूँ लेकिन ठीक है. एंड देन दीपक, अरुण सेड, बट यू कांट वर्क फॉर मी. एंड ही सेड कि नहीं, तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते हो. क्यों? व्हाई नॉट? बिकॉज आई कांट पे यू. तो बहुत ही डायरेक्ट वे में अरुण ने उसको बता दिया कि मेरे पास तो, मैं तुमको पे ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं तुमको वेजेस जो है, कि मैं तुमको पगार जो है वो मैं दे सकूं, इसलिए तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते हो. And I thought over for a minute, perhaps I had misjudged my man. अब जो दीपक है वो सोचने लगा, यार गलत आदमी can you feed me? I asked. लेकिन हार मानने वालों में से नहीं है. See, in a question has been asked कि क्या क्या qualities हमको उसमें दिखती है, दीपक में क्या क्या क्वालिटीज हमको नजर आती है. तो उसमें ऑब्वियसली एक क्वालिटी ये है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है. ही इज अ डिटरमाइंड पर्सन. बहुत डिटर्मिनेशन है, जो ठान लिया वो मैं करके रहूंगा, ऐसा वो इंसान है. इसलिए उसने उससे पूछा कि कैन यू फीड मी? आई आस्क्ड. तो सोचा चलो अब मैंने इसको पकड़ ही लिया है तो मैं पीछे तो हटने वाला नहीं हूँ. तो ही सेड कि ठीक है, मुझे तुम पे नहीं कर सकते लेकिन खाना तो खिला सकते हो. एंड कैन यू कुक? ही काउंटर. तो उसने जब पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, तो इसका क्वेश्चन ये था कि तुम खाना बना सकते हो क्या. एंड व्हाट डिड दीपक से? ही सेड आई कैन कुक. आई लाइड. तो उसने झूठ बोला. उसको कुकिंग आती नहीं थी, लेकिन स्टिल ही सेड कि हाँ हाँ मैं कुकिंग कर सकता हूँ. एंड अरुण सेड इफ यू कैन कुक, he said I'll feed you. तो ठीक है भाई, अगर तुम कुक करोगे तो मैं तुमको खाना खिला दूंगा. तो दोनों का ये तय हो गया. He took me to his room and told me I could sleep in the veranda. और उसने मुझे रूम में, अपना जो उसका एक कमरे में रहता था वो, तो वहां वो लेकर चला गया उसको. उसने बोला कि अब तुम ये वरांडा में सो सकते हो. बट आई वॉज नियरली बैक ऑन द स्ट्रीट दैट नाइट. लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि दीपक को लगा कि अब मुझे ये वापस सड़कों पे मुझे आना पड़ेगा. वो भगा दिया गया था. क्यों भगा दिया गया था ये देखते हैं.
The meal I cooked must have been pretty awful because Arun gave it to the neighbor's cat and told me to be off. अब हमने देखा कि उसको खाना बनाना आता नहीं था, झूठ बोला था उसने। झूठ इसलिए बोला था कि उसके साथ रह सके, और उसके साथ रहने का उसका रीजन ये था कि उसके साथ रहेगा तो उसको बाद में फिर वो उससे चोरी करके जा सकेगा। तो झूठ बोला था खाना बनाना आता है, लेकिन जो उसने खाना बनाया था इतना गंदा खाना था, प्रिटी ऑफुल। ऑफुल मीनिंग बहुत बेस्वाद खाना था कि अरुण ने उसको पड़ोस की जो बिल्ली थी उसको वो दे दिया था और उसको भगा दिया कि भाई तू तो खाना बनाना आता नहीं तुझे, तूने मुझे झूठ बोला, भग जा। But I just hung around smiling in my most appealing way, and then he couldn't help laughing. But बहुत innocent फेस होगा शायद दीपक का, क्योंकि बहुत ही अपीलिंग वे में फिर से वो उससे मुस्कुराते हुए, उसको देखते हुए मुस्कुराते हुए अरुण को उसके आगे पीछे ही घूमता रहा। और कब तक घूमता रहा? जब तक अरुण ने गिव अप नहीं कर दिया, जब तक उसने बोला कि ठीक है ना। वो हंसने लगा उसको देखकर। He sat down on the bed and laughed for a full 5 minutes and later patted me on the head and said, "Never mind. He did teach me to cook in the morning." तो फिर वो हंसते हंसते बैठ गया। 5 मिनट तक ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली हंसता रहा, उसको पैट किया, थपकी दिया उसको हेड पे और बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैं तुझे सुबह खाना बनाना सिखा दूंगा। Not only did he teach me to cook, but he taught me to write my name and his, and said he would soon teach me to write whole sentences and add money on paper when you didn't have any in your pocket. And he said कि ठीक है मैं तुमको खाना बनाना सिखाऊंगा। तो दूसरे दिन उसने उसको खाना बनाना भी सिखाया। और उसके अलावा अब अगेन कीप दिस इन माइंड कि जो मेन जो चीज उसने उसको सिखाया, जिसका जो थीफ था, जो नरेटर है दीपक जो है, जिसको यानी जो सबसे बेनिफिशियल चीज जो उसको लगी कि मैं अरुण के पास रहा और ये मैंने काम करना सीखा, तो वो था राइटिंग। ठीक है, उसने उसको उसका नाम लिखाना सिखाया एंड ये भी बोला कि मैं और तुमको आगे होल सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा और इवन मैं तुमको एडिशंस भी करना सिखाऊंगा। सब्ट्रैक्शन, एडिशन यानी जोड़ गणित जो बोलते हैं ना, जोड़ यानी जोड़ना सिखाऊंगा, राइट, ताकि वो जो भी कैलकुलेशंस है वो कर सके, पैसे का हिसाब रख सके। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट फॉर वर्किंग फॉर अरुण। नाउ विल सी कि क्यों उसको अरुण के साथ काम करना अच्छा लगता था, राइट। अब वो क्या उसका रूटीन था, अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रूटीन क्या था अरुण, जब दीपक अरुण के साथ काम करता था तो वो क्या रूटीन था उसका, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ वो क्या करता था? आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड लेटर वेंट आउट शॉपिंग। तो सुबह सुबह वो चाय बनाता था खुद के लिए, अरुण के लिए, और फिर शॉपिंग करने चला जाता था। I would take my time buying the day's supplies and make a profit of about 25 पैसा a day. और फिर पूरे दिन का जो यानी सामान रहता था, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा तेल, क्योंकि अरुण जो है उसके पास भी बहुत पैसा नहीं था कि वो अपना जो सप्लाईज है वो घर में भर कर रख सके। तो रोज का थोड़ा थोड़ा सामान, सब्जी, ये वो लेकर आता था जाकर, राइट। दीपक को वो पैसे देता था अरुण, और वो दीपक पैसे से लेकर आता था। और रोज का वो, रिमेम्बर दिस, द अमाउंट 25 पैसा अ डे वो बचा लेता था। ये सेल्स की जितना भी पैसा उसको बाजार में खरीदारी करने के लिए अरुण देता था, तो उसमें से वो रोज का कम से कम 25 पैसा, 25 पैसा जो है वो उसका बचा लेता था। नाउ आई वुड टेल अरुण, कैसे बचाता था? बहुत इजी है। आई वुड टेल अरुण दैट राइस वाज 56 पैसा अ पॉन्ड, इट जनरली वाज, बट आई वुड गेट इट एट 50 पैसा अ पॉन्ड। तो वही झूठ बोलकर थोड़ा सा, अब चावल लेने जाता था तो अरुण को बताता था कि वो 56 पैसे का है, जबकि वो 50 पैसे का रहता था, यानी 1 किलो 50 पैसे का रहता था। वो बता देता था कि 56 पैसे का है। अब रिमेम्बर, ये पुराने जमाने की कहानी है ना, उस समय 25 पैसा यानी समझ लो कि कम से कम 50 रुपए वो दिन का बचा लेता था, राइट। इतनी वैल्यू अब बढ़ गई है पैसों की, तो वो उतना पैसा बचाता था। He says, I think he knew I made a little this way, but he didn't mind. और उसको पूरा
पता था उसको कि अरुण को शायद अंदाजा है कि मैं इतना पैसा बचा लेता हूँ, लेकिन फिर भी अरुण उसको कुछ बोलता नहीं था। he wasn't giving me a regular wages। और ये क्यों जस्टिफाई कर रहा है, वो पैसे जो बचा लेता था उसके, उससे जो चोरी ही बोलेंगे ना, किसी ने आपको कुछ खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, आप उसको जब एक तो झूठ बोल रहे हो कि इतने पैसे का है और थोड़े से पैसे बचा ले रहे हो, तो बोल रहा है लेकिन ठीक है, वो मुझे रेगुलर वेजेस नहीं देता था, इसीलिए मैं उतना पैसा बचा रहा था और उनको पता भी था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो ठीक ठाक है ये सब चीजें। I was really grateful to Arun for teaching me to write। और जो सबसे ज्यादा उसको अरुण के साथ रहकर जो सबसे अच्छी चीज उसको लग रहा था अरुण उसके लिए कर रहा है, तो वो क्या कर रहा था अरुण, उसको लिखना सिखा रहा था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limits to what I could achieve। It might even be an incentive to be honest। क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया और मैं एक एजुकेटेड मैन के जैसे लिखने लगा, तो फिर मैं मेरे जो अचीवमेंट्स हैं, यानी मैं बहुत ज्यादा तरक्की लाइफ में कर पाऊंगा। एंड he even thought, now just see the psychology of the thief, right? जो narrator है, जो दीपक है, as I told you कि he is just a 15 years old boy, ठीक है, फिर भी वो चोरी कर रहा है और अपने काम में वो माहिर भी हो चुका है। लेकिन बाय दी एज वी रीच टू द एंड ऑफ द स्टोरी, हमको एहसास होगा कि वो शायद मन है ना, वो सोच समझ के चोरी नहीं कर रहा था, मजबूर था, इसीलिए वो इस प्रोफेशन में एंटर हुआ था। क्योंकि अब जब वो लिखना सीख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं लिखकर शायद मैं एक ऑनेस्ट मैन बन पाऊं, राइट? तो दैट इज व्हाई सेइंग कि लिखना सीख जाऊंगा, एजुकेटेड हो जाऊंगा, तो मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर पाऊंगा और मैं एक ऑनेस्ट मैन के जैसे अपनी लाइफ गुजार पाऊंगा। अरुण मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अरुण जो है उस वो कहीं ऐसे जॉब नहीं करता था, ऐसे परमानेंट जॉब नहीं था कि इसको हर महीने कुछ पैसे मिल रहे हैं, मे बी ही वाज इनटू सम बिजनेस। तो इसीलिए वो बता रहा है कि अरुण जो है फिट्स एंड स्टार्ट्स। नाउ इट्स अ फ्रेज, फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है कि कोई रेगुलर बेसिस पे जब आपको कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, यानी कभी मिल रहे हैं कभी नहीं मिल रहे हैं, थोड़े कम कभी ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू गेट मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। सो ही वुड बी बोरोइंग वन वीक, लेंडिंग द नेक्स्ट। तो कभी वो किसी से उधार लेता था, बोरो करना यानी उधार लेना, और कई बार वो किसी को उधार देता था, लेंडिंग मतलब उधार देना। He would keep worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate lavishly। और अरुण को टेंशन रहता था, भाई मेरा एक नेक्स्ट चेक कब आएगा कब आएगा, और जब वो चेक आता था तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो जाकर पार्टी कर देता था, सेलिब्रेट करता था और दिल खोल कर वो स्पेंड करता था। तो इससे हमको एक्चुअली अरुण की जो एक क्वालिटी जो पता चलती है, दैट ही इज नॉट अ स्टिंजी मैन। ही वो पैसों को जमा करके रखने वालों में से नहीं है, जो दिलदार बोलते हैं, राइट? कि पैसे हैं तो खर्च कर दो, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब तक के लिए रुको, और फिर आने से वो जमा करके पैसे रखने वालों में से नहीं था। One evening he came home with a wad of notes, and at night I saw him tuck the bundles under his mattress at the head of the bed। तो एक रात जब वो घर आया एक शाम, तो उसके पास एक नोटों का बंडल था। वॉर्ड ऑफ नोट्स मीनिंग नोटों की गड्डी थी। और जब वो आया तो रात में उसने क्या किया, अपने बेड के नीचे तकिए सिरहाने जो रहता है ना, यूजुअली हम लोग पेपर्स या कुछ डाल के वहां रख देते हैं सेफ्टी के लिए, तो उसने वो जो नोट का बंडल था वो अपने गद्दे के नीचे डाल के रख दिया। I had been working for Arun for nearly a fortnight, and apart from shopping, hadn't done much to exploit him। और अब दीपक को जो नरेटर है उसको इसके साथ काम करते करते ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए थे। फोर्टनाइट मीनिंग a period of 15 days, तो ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए थे। और बस जो उसने बताया कि 25 पैसा एक दिन में जब वो थोड़ा सा बचा लेता था, उसके अलावा इसने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया था। एक्सप्लॉइट नहीं किया था इन द सेंस कि उससे और भी उसने कुछ चोरी नहीं की थी। एंड ही सेज आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो।
I had the key to the front door, which meant I had access to the room whenever Arun was out. और ऐसा नहीं कि ये चोरी नहीं कर सकता था, क्योंकि अरुण he was such a trusting person and उसको लोगों पे इतना विश्वास रहता था कि उसने इस छोटा सा बच्चा जो कि 15 दिन ही हुआ था इसके पास आके रह रहा था, लेकिन इसने फिर भी उसको चाबी घर के कमरे की अपने दे दी थी। और ऑब्वियसली चाबी है अगर मेरे पास, तो फिर मैं कभी भी खोल के चोरी कर सकता हूँ, ऐसा दीपक कर सकता था। बट देन उसको लगा यार छोटी मोटी चीजें क्यों मैं चोर के भागूं, तो वो रुका था कि एक राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं इसको यानी बड़ा हाथ मारूंगा। नाउ ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब वो देखो बार बार यानी जो क्वालिटी है अरुण में, जो क्वालिटी है, तो उसमें से एक जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, ठीक है, एक तो वो फ्रेंडली है, ठीक है, लोगों पे विश्वास करता है, ही इज अ ट्रस्टिंग मैन। उसको कभी भी क्योंकि मे बी ही इज हिमसेल्फ एन ऑनेस्ट पर्सन, और जब हम खुद जैसे रहते हैं हम दूसरों को वैसा ही जज करते हैं, है ना। हम अच्छे हैं तो हमको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, हम बुरे हैं तो हमको पूरी दुनिया बुरी लगती है। तो ही इज अ ट्रस्टिंग पर्सन, विच मीन्स कि वो खुद एक ऑनेस्ट है पर्सन था, इसलिए उसको वो भी ऑनेस्ट लगा। तो इसलिए उसने कभी भी उसको ऐसे नहीं लगा कि मैं इसको चाबी दे रहा हूँ, ये मुझे चोर यानी मेरे से चोरी कर गया, मुझे लूट के भाग जाएगा। एंड दैट वाज व्हाई आई कुडंट मेक अप माय माइंड टू रॉब हिम। और दुविधा यही थी, जो नरेटर था जिसने अपना नाम दीपक बताया था, उसकी दुविधा यही थी कि वो कोई हम पे जब ट्रस्ट करता है तो हमको धोखा देने में बहुत यानी इजीली हम किसी को फिर डिसीव नहीं कर पाते हैं ना, हम धोखा नहीं दे पाते हैं। तो इसी कारण भी शायद वो 15 दिन रुक गया, क्योंकि वो उसको इतना ट्रस्ट करता था। तो ये तय नहीं कर पा रहा था, यानी दिमाग में यानी उसको समझ नहीं पा रहा था मैं इसको कैसे रॉब करूं, मैं कैसे इससे चोरी करूं, ये मुझ पे इतना विश्वास करता है, मैं कैसे इसका विश्वास तोड़ूं। इट इज easy to rob a greedy man because it deserves to be robbed। अब वही बता रहा है दीपक जो नरेटर है कि जो लालची इंसान ग्रीडी मैन रहता है उसको हम लोग इजीली उससे चोरी कर सकते हैं, क्योंकि वो डिजर्व करता है ना, लालची इंसान डिजर्व करता है कि उसको कोई लूट के निकल ले। इट्स इजी टू रॉब अ रिच मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। वैसे ही एक रईस इंसान को भी हम लोग इजीली रॉब कर सकते हैं, क्योंकि रईसों के पास इतना पैसा है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनसे कोई चोरी करके निकल ले। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ पुअर मैन, इवन वन हु रियली डजंट केयर इफ ही इज रॉब। बट ही सेज कि बहुत डिफिकल्ट होता है किसी गरीब इंसान को लूटना, राइट। और स्पेशली ऐसे गरीब इंसान को लूटना कि जिसको हमने लूट भी लिया तो उसको बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे वो किसके लिए डिस्क्राइब कर रहा है ये कि गरीब और जिसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो अरुण के लिए बोल रहा है। A rich man or a greedy man or a careful man wouldn't keep his money under a pillow or mattress, है ना। कोई भी रईस इंसान जो रहेगा या ग्रीडी मैन रहेगा और इवन केयरफुल मैन कभी भी एक नोटों का बंडल अपने तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे कभी नहीं रखेगा। वो यूजुअली क्या करेगा, अलमारी में, क्योंकि वो किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे ऐसे लोग, तो वो किसी अलमारी में सेफ जगह रखेंगे। He did lock it up in a safe place. Arun had put his money where it would be child's play for me to remove it without his knowledge। लेकिन अरुण ने वो पैसा कहाँ पे रखा था, गद्दे के नीचे रखा था, जो कि एक बच्चों का खेल था, है ना, कोई भी निकाल सकेगा वो गद्दों के नीचे, गद्दे के नीचे से तो पैसा। और ये तो फिर चोर है और एक अपने आप को वो शातिर चोर बोल रहा है, तो ही वाज श्योर कि अरे यहाँ से तो मैं आराम से निकालूंगा। इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। और अब जब उसने देख लिया, दीपक ने, नरेटर ने, कि अरुण पैसा लाया है, एक गड्डी लाई है, उसने गद्दे के नीचे उसको रख दिया है, तो उसने सोचा कि चलो अब मैं कुछ अपना जो असली काम है, जो मैं काम करने आया था, वो अब मैं करूंगा। I'm getting out of practice. If I don't take the money, he'll only waste it on his friends. He doesn't even pay me. अब वो अपने आप को क्या कर रहा है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, या बोल दे ना पेप टॉक दे रहा है ना, अपने आप को बूस्ट कर रहा है कि अब मुझे चोरी करना है, ठीक है। तो बोला यार मैं तो प्रैक्टिस छूट जाएगी मेरी अगर अभी आज मैंने चोरी नहीं किया तो, और फिर अगर मैंने इससे पैसे नहीं चुराए तो ये अपने फ्रेंड्स में वेस्ट कर देगा ना, एज इट इज कोई बहुत अच्छा काम तो वो पैसे का करेगा नहीं, दोस्तों में उड़ा देगा।
और फिर उसने फिर ये भी सोचा कि मुझे तो पैसा भी नहीं देता है, मुझे तो सैलरी भी नहीं देता है, तो मैं तो उसको उसके पैसे तो मैं चुरा लूंगा। Arun was asleep. Moonlight came in from the veranda and fell across the bed. अब रात हो गई, सो गया अरुण, ठीक है। I sat up on the floor, my blanket wrapped around me, considering the situation. अब ये वेरांडा में ही रहता था, तो अब इसकी तो नींद उड़ गई थी क्योंकि आज उसने चोरी करना था, और बैठा था ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के बैठा था, ठंडियों के दिन थे, और सोच रहा था अब मैं कैसे करूं, सो गया, गहरी नींद में है, कैसे ने सिचुएशन को वो कंसिडर कर रहा था। There was quite a lot of money in that ward, and if I took it, I would have to leave town. I might make the 10:30 express to Amritsar. अब उसको पता था कि वार्ड है ना, गड्डी थी, रुपयों की गड्डी थी, तो उसको लगा बहुत सारे पैसे हैं, और ये पैसे अगर मैंने चोरा तो मुझे ये शहर छोड़कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में रहूंगा और पकड़ा गया तो अच्छी बड़ी सजा होगी। तो वो वही सोच रहा था कि अब मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और फिर दिमाग में क्या चल रहा था कि 10:30 की एक्सप्रेस है अमृतसर जाने के लिए, ट्रेन 10:30 की है, तो वो प्लान कर रहा था कि कहाँ भागूंगा। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि क्या सोच रहा था, कहाँ भाग के जाऊंगा, अमृतसर में भागकर चला जाऊंगा। Now, slipping out of the blanket, I crept on all fours through the door and up to the bed and peeped at Arun. तो अपने ब्लैंकेट से निकला और 4 पैर से वो धीरे धीरे अरुण के बेड के पास गया। He was sleeping peacefully with a soft and easy breathing. और अरुण, he was an honest man, he was the most trusting man. तो उसको कोई टेंशन नहीं कि मेरे बेड के नीचे पैसों की गड्डी रखी है, रुपयों की गड्डी रखी है। बहुत बेफिक्री से वो सो रहा था। His face was clear and unlined. है ना, टेंशन वाला भी उसका यानी फेस भी जो था, तो ऐसे जो टेंशन की रेखाएं रहती है माथे पे, शिकन कुछ भी नहीं, बहुत पीसफुली वो सो रहा था। Even I had more markings on my face, though mine were mostly scars. जो नरेटर है वो ये भी बोल रहा है कि मेरे चेहरे पे ज्यादा झुर्रियां और मार्किंग्स थे, यानी स्कार्स थे, दाग धब्बे थे, और दाग धब्बे इसलिए कि वो चोर था, चोरी करने में वो इधर उधर भागता था, मार वार भी खाया हुआ था। Now, my hand took on an identity of its own and it slid around under the mattress, the fingers searching for the notes. अब उसके जो हाथ है, एक चोरों के हाथ जो बोलते हैं ना, तो उसने बोला अपने एक अलग ही उनकी पहचान थी उसके हाथों की, तो वो हाथ धीरे धीरे उसके मैट्रेस के अंदर गए और नोट्स ढूंढने लगे। They found them and drew them with a crackle. और जब नोट मिल गए तो उसने ग्रेजुअली धीरे से बिना आवाज किए वो पैसे निकाल लिए। अरुण sighed in his sleep and turned on his head towards me. My free hand was resting on the bed and his hair touched my fingers. और अचानक से उसने एक आहा भरी, साए मतलब एक आहा भरना, और टर्न हुआ ना, करवट ली उसने, और एकदम इसको फेस करने लगा। अब इसका जो एक हाथ तो पैसों का बंडल निकाल रहा था, और जो दूसरा फ्री हैंड था वो एकदम उसके चेहरे के सामने रखा था, तो उसका हेयर जो है वो फिंगर्स को टच भी हुए, तो वो थोड़ा सा घबरा गया। I was frightened when his hair touched my fingers and crawled quickly and quietly out of the room. अब डर गया वो, और धीरे से लेकिन वो अपना क्रॉल करके फिर से रूम के बाहर आ गया। When I was in the street, I began to run. और जैसे ही बाहर आया, पैसे तो उसने जो चोरने थे वो अब उसके हाथ में थे, और वो बिल्कुल सरपट दौड़ भागा। I ran down the bazaar road to the station. और बाजार का जो रोड है ना, just as I told you कि रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर है, नाम चाहे उसका हमको इंडियन नहीं लगता है, he was born and brought up in India. तो जब इंडियन राइटर्स स्टोरी लिखते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे हिंदी वर्ड्स भी यूज होते हैं। अब ये वाले भी चैप्टर में हम लोग कई एक हिंदी वर्ड्स देखेंगे, जैसे अब यहाँ पे बाजार आया, उसके बाद जैसे मैदान, पेजामास, so all these are हिंदी वर्ड्स। लेकिन कुछ एक हिंदी वर्ड्स अगर आपको पता भी होगा कि इंग्लिश डिक्शनरी में भी अपनी जगह पा चुके हैं, राइट। अलमीरा जैसे होता है, अलमारी जो अलमीरा बोलते हैं हम लोग, तो इट्स एन इंडियन वर्ड, हिंदी वर्ड है, बट देन it is so frequently used and so popular, it
it has got a place in the dictionary. तो Indian writer है इसलिए हम लोग देख रहे हैं बाजार ये word use हुआ इधर. The shops were closed but the few lights were on in the upper windows. अब वो जब बाजार रोड स्टेशन की तरफ भागा तो दुकानें तो बंद हो चुकी थी, रात हो चुकी थी क्योंकि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उजाला, जो दुकानें हैं ऊपर जो लाइट्स वगैरह लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी सी वो जल रही थी. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. So as I told you, pajamas again a Hindi word, right? तो उसने वो जो नोटों की गड्डी कहाँ पे रखी हुई थी छुपा के, अपने जो उसका पैजामा था उसके नाड़ा जो बोलते हैं ना, तो नाड़े में उसने उसको अटका के रखा था. I felt I had to stop and count the notes, though I knew it might make me late for the train. अब उसने सोचा कि यार मैं कम से कम गिन तो लूं नोट कितने का हाथ मारा, जो बोलते हैं ना, कितने पैसे मैंने चोरे. तो ये सोच के उसने सोचा मैं रुक जाता हूँ और मैं नोट गिन लेता हूँ. ऑल्दो उसको एहसास था कि अगर मैं रुका तो मैं वो जो 10:20 वाली ट्रेन, वो अमृतसर जाने के लिए, अमृतसर, आई एम रिपीटिंग एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, तो अमृतसर जाने के लिए वो ट्रेन जाने वाली थी, वो 10:20 को निकलने वाली थी. इट वॉज ऑलरेडी 10:20 बाय द क्लॉक टावर, और ऑलरेडी 10:20 हो चुके थे. लेकिन फिर भी आई स्लोड डाउन टू द वॉक and my fingers flicked through the notes. फिर भी वो धीरे चलने लगा और पैसे गिनने लगा कि कितने हैं. There were about 100 rupees in fives. तो 5 के कम से कम कितने नोट थे? 100 नोट थे. यानी टोटल उसने कितना पैसा चोर के वो भाग रहा था? 500 रुपया वो चोर के भाग रहा था. और 500 यानी अभी हम लोग सोचेंगे आज के जमाने के हिसाब से कि 500 रुपए तो बहुत कम है, लेकिन ये उस जमाने की कहानी है जब 500 वर इक्विवेलेंट टू 50,000, राइट? तो ऑलमोस्ट वो 50,000 रुपए लेकर भाग रहा था, जो कि कम अमाउंट नहीं होती. अ गुड हॉल. अब वो वही सोच रहा था कि अच्छा, यानी अच्छा हाथ मारा मैंने, यानी एक समय पे इतना सारा मैं पैसा चोर लिया. I could live like a prince for a month or two. और वही कि मैं एकदम राजा महाराजा जैसा रह सकता हूँ. 1-2 महीने तो आराम से मैं राजा महाराजा जैसा रह सकता हूँ. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I'd never bought a ticket in my life, but dashed straight onto the platform. और स्टेशन पहुंचा. टिकट चोर था तो टिकट तो लेने का सवाल ही नहीं उठता है. बोल भी रहा है कि मैंने कभी जिंदगी में कभी मैंने टिकट खरीदी ही नहीं, हमेशा बिना टिकट के ही वो ट्रैवल करता था, और इसीलिए वो सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ भागा. द अमृतसर एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. और जब वो प्लेटफॉर्म में भागा गया तो अमृतसर जो एक्सप्रेस है वो बस धीरे धीरे छुक 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 करके जो स्टेशन है वो छोड़ ही रही थी. It was moving slowly enough for me to be able to jump on the footboard of one of the carriages, but I hesitated for some urgent, unexplainable reason. इसे इसकी जब मैं गया तो बहुत है ना, जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो बहुत धीरे चलती है, बाद में स्पीड पकड़ती है, और धीरे ट्रेन जब धीरे रहती है तो हम लोग चढ़ भी सकते हैं. तो इसे इसकी वो धीरे चल रही थी, इतने धीरे कि मैं कोई भी एक डब्बे में आसानी से चढ़ सकूं, पर पता नहीं क्यों इसे इसकी अनएक्सप्लेनेबल रीजन, यानी वो हेजिटेट किया, यानी वो रुक गया थोड़ा सा, यानी इसको समझ में भी नहीं आया मैं क्यों रुक रहा हूँ. मैंने दौड़ के भागकर वो किसी भी डब्बे पे चढ़ सकता था, लेकिन कोई ऐसा रीजन था कि अनएक्सप्लेन, कि वो हमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और उस रीजन से वो उस पर चढ़ा नहीं. जो अमृतसर गाड़ी जा रही थी उस पर वो चढ़ा नहीं. I hesitated long enough for the train to leave without me. और इतना वो रुक गया, इतना हेजिटेशन था कि वो ट्रेन जाते तक, यानी जब ट्रेन पूरी छूट गई तब तक वो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा रहा. When it had gone and the noise and the busy confusion of the platform had subsided, I found myself standing alone on the deserted platform. अब गाड़ी निकल गई, और गाड़ी जब स्टेशन पे रहती है तो थोड़ा हो हल्ला रहता है, कंफ्यूजन रहता है, आवाजें रहती है, राइट? तो वो जब खत्म हो गई आवाजें, जब पूरा जो स्टेशन है, एक तो ठंडी के दिन थे, 10:30 बजने से यानी लेट ही हो जाता है, तो जब स्टेशन सूना हो गया तब तक दीपक जो है वो स्टेशन पर ही खड़ा रहा.
The knowledge that I had 100 stolen rupees in my pajamas only increased my feeling of isolation and loneliness. और वो जो पैसे उसने चोरे थे 500 रुपए, 100 जो नोट थे 5-5 के, वो जो चोरा था, तो उसको खुश होने की जगह उसको कौन सी फीलिंग आ रही थी ऑफ आइसोलेशन की, मैं पूरी दुनिया में अकेला हूँ, लोनली हूँ, ये वाली फीलिंग उसके अंदर आ रही थी, ना कि खुशी की फीलिंग कि भाई मैंने इतने सारे पैसे किसी से चोर के लाए हैं। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब वो वही सोचा, यार ट्रेन तो चलेगी, अब मैं रात कहाँ गुजारूंगा। आई हैड नेवर केप्ट एनी फ्रेंड्स बिकॉज समटाइम्स फ्रेंड कैन बी वंस अनडूइंग। अब उसने कभी फ्रेंड्स भी नहीं बनाए थे। अब हमको पता है 15 साल का लड़का जो कि चोरी करता है, तो रीजन क्या था उसका फ्रेंड्स नहीं बनाने के लिए, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैंने दोस्त बनाए तो कहीं वो दोस्त ही मुझे फंसा ना दे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ही सेज कि फ्रेंड्स कैन बी वंस अनडूइंग, यानी अनडूइंग हियर मीनिंग कि एक इंसान, यानी कई बार दोस्त ही क्या हो जाते हैं, किसी के बर्बादी का कारण बन जाते हैं, तो इसलिए उसने दोस्त बनाया ही नहीं था। I didn't want to make myself conspicuous by staying at a hotel. And he says कि किसी होटल में जाकर भी मैं रुक नहीं सकता था, क्योंकि अगर एक 15 साल का बच्चा पैसे लेकर किसी अच्छे होटल में जाए तो लोग उसको शक भरी निगाहों से देखेंगे और फिर शायद वो पकड़ा भी जाए। इसलिए वो बोल रहा है कि मैं किसी होटल जाकर भी रुकना नहीं चाहता था। And the only person I knew really well in the town was the person I had robbed. और जिस एक इंसान को वो इस शहर में सबसे अच्छे से जानता था, वो था अरुण। और वो अरुण के पास जाकर रुक नहीं सकता था, क्योंकि वो उसी के घर पे चोरी कर कर आया था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar, keeping to dark, deserted alleys. अब उसने स्टेशन से तो वो निकल गया और फिर अंधेरी गलियों से वो थोड़ा सा कि सुनसान गली, यानी जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ कोई उसको देखे ना, तो वैसे सूनी गलियों से वो चला गया। I kept thinking of Arun. He would still be asleep, blissfully unaware of his loss. और उसके दिमाग में कौन घूम रहा था? अरुण घूम रहा था, उसका चेहरा घूम रहा था अरुण का, और उसको ये एहसास था कि अरुण को अभी तो पता ही नहीं है कि चोरी इसने किया है, तो ही वॉज अनअवेयर, राइट। और बहुत अच्छे से वो सो रहा हो, क्योंकि उसको पता नहीं कि मेरे घर में चोरी करके ये भाग गया है। I have made a study of men's faces when they have lost something of material value. अब 15 साल का है, लेकिन he says कि मुझे यानी आइडिया है कि अगर किसी के पास से हमने चोरी की तो उसका फेस का एक्सप्रेशंस कैसे रह सकते हैं। He says a greedy man shows panic. यानी एक लालची इंसान के पास से अगर हमने चोरी की तो वो एकदम पैनिक हो जाता है, एकदम घबरा जाता है कि भाई मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। A rich man shows anger. और एक रईस इंसान से अगर हमने चोरी की तो वो गुस्से में रहेगा, एक गुस्सा उसके चेहरे से झलकता है। और द पुअर मैन शोज फियर। और किसी गरीब से चोरी की तो बेचारा जो वो रहता है एकदम डर जाता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत से ये थोड़ा सा पैसा कमाया था और अब ये भी पैसा मुझसे किसी ने चोर लिया, तो वो एकदम डर रहता है एक गरीब इंसान के चेहरे पे जब हम उससे कुछ लूट लेते हैं। But I knew that neither panic nor anger nor fear would show on Arun's face when he discovered the theft. लेकिन दीपक जो नरेटर है उसको पता था कि जब अरुण को पता चलेगा कि मेरे को ये दीपक जो है वो लूट के चला गया है, मेरे पैसे चोरी करके चला गया है, तो उसके चेहरे से ना पैनिक रहेगा, ना घबराहट रहेगी, ना एंगर, ना गुस्सा और ना डर, फियर, right? Only a terrible sadness, not for the loss of money, but for my having betrayed his trust. और उसके चेहरे पे क्या रहेगा? सिर्फ एक दुख रहेगा, और वो दुख भी इस बात का नहीं कि उसको किसी ने लूट कर ले गया है, उसने जिस पे ट्रस्ट किया उसने उसको लूट कर, यानी पैसे चले गए, उसका दुख नहीं रहेगा। दुख किसका रहेगा कि मैंने इस पे विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है ना, इसने मुझे बिट्रे किया, तो उसका दुख उसको ज्यादा होगा। I found myself on the Maidan and sat down on a bench with my feet tucked up under my hunches. अब जो
उसके बारे में ही सोच रहा था। एक्चुअली दीपक के दिमाग से अरुण निकल ही नहीं पा रहा था। अब वो एक मैदान में चला गया, अगेन अ हिंदी वर्ड, और वहां पे ऐसे करके नहीं बैठ जाते हैं, अपने घुटने अपने पास पेट के पास जो लेकर बैठ जाते हैं, वैसा वो वहां पे जाकर एक कोने में बैठ गया। The night was a little cold and I regretted for not having brought Arun's blanket along. ठंडी का दिन था, ठंडी बहुत थी, तो ये वही सोचा काश मैं ब्लैंकेट ले आता अरुण के घर से। लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और ठंडी तो ठंडी और बरसात भी होने लगी, बूंदाबांदी होने लगी। ड्रिजल मीनिंग बूंदाबांदी। सून इट वॉज रेनिंग हेविली, और फिर बरसात बढ़ गई। माई शर्ट इन पिजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्रॉट द रेन whipping across my face. अब उसके पूरे जो कपड़े हैं चिपक गए थे और हवा, तेज आंधी तूफान भी चलने लगा था। I told myself that sleeping on a bench was something I should have been used to by now, but the veranda had softened me. अब उसको वही लग रहा था कि मैं तो चोर हूँ, कोई घर बार तो उसका था नहीं, तो उसको ऐसे बेंचेस पे, पार्क के बेंचेस पे सोने की आदत अभी तक हो जानी थी। बट हुआ ये कि वो आदत होने से पहले ही वो अरुण के घर जाके रहने लगा। अरुण ने उसको अच्छा सा गद्दा वगैरह दे दिया था वरांडा में डाल के सोने के लिए, तो अब इसको बाहर सोने की आदत भी नहीं रह गई थी, तो इसको नींद नहीं आ रही थी। I walked back to the bazaar and sat down on the steps of a closed shop. अब फिर ये बाजार की तरफ गया, वहां पे दुकानें जो कि बंद हो गई थी, उनकी जो सीढ़ियां रहती है उसमें वो बैठ गया। A few vagrants lay beside me, rolled up tight in thin blankets. अब वहां पे कुछ होमलेस बेगर्स जो रहते हैं ना, वैग्रेंट्स मीनिंग जिनका घर बार नहीं रहता है, भिखारी जो लोग रास्ते पे ही रात बिता देते हैं, तो वो अपने ब्लैंकेट ओढ़ के सोए हुए थे। The clock showed midnight. I felt for the notes. और अब ऑलमोस्ट कितने बज गए थे? 12 बज चुके थे। अब इसने देखा कि नोट है क्या नहीं इसके पास, उसने फील किया। They were still with me, but had lost their crispiness and were damp with rain water. तो वो पैसे तो थे, लेकिन जो क्रिस्पीनेस थी ना, जो एकदम फ्रेश नोट्स थे, अब वो नहीं, पूरे गीले हो चुके थे। अरुण मानिया, वो सोचने लगा किसके पैसे हैं? अरुण के पैसे हैं। In the morning, he would probably have given me a rupee to go to the picture, but now I had it all. Again, he's just justifying अपने आप को, वो कि मैंने गलत नहीं किया, वो अपने आप को, अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब ये भी सोच रहा है कि सुबह शायद अरुण मुझे 1 आध रुपया देता भी था, पिक्चर देखकर आजा ये बोलता था, लेकिन अब तो मेरे पास पूरे पैसे हैं। एंड फिर और भी सोच रहा था, नो मोर कुकिंग हिज मील्स, रनिंग टू द बाजार और लर्निंग टू राइट होल सेंटेंसेस। उसके दिमाग में कि अब मुझे कुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, उसके लिए बाजार नहीं भागना पड़ेगा, और सेंटेंसेस भी नहीं लिखना पड़ेगा। और बस ये जो ख्याल उसको आया कि सेंटेंसेस लिखना वो उसको सिखा रहा था। अब बस यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ट्विस्ट इन द टेल, है ना, कहानी में एक नया मोड़। whole sentences वो सोचने लगा। They were some things I had forgotten in the excitement of 100 rupees. अब वही सोचा कि यार मैं भूल ही गया था, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं इतने 100 का बंडल ऐसे लेके भाग रहा हूँ कि मैं भूल ही गया था कि वो मुझे लिखना सिखा रहा है। Whole sentences I knew could one day bring me more than 100 rupees. वही सोचने लगा कि अगर मैं लिखना सीख गया, होल सेंटेंसेस में लिखने लगा, तो मेरे पास इन्हें आगे चलकर 100 जो 500 रुपए जो मैंने यानी आज बस चोरी किए हैं, वो खत्म भी हो जाएंगे कुछ दिन में। तो अगर मैंने पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं उससे भी ज्यादा कमा पाऊंगा। It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a wise and successful man, that was something. तो वो सोचने लगा कि बहुत इजी है, किसी से चोरी करना बहुत इजी है, चोरी करो और उतना ही इजी है कि पकड़े भी जाओ। और फिर चोर लोगों का तो ऐसा रहता है, चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो कोई ऐसे नहीं है कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, फिर बाहर निकलेंगे फिर वही काम करेंगे। तो इसे इसकी ये बहुत इजी है ये सब चीजें करना। लेकिन डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट ये है कि ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क से अपना जीवन गुजारा करना, है ना, टू बी अ रियली, और आगे बढ़ना।
जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना, टू बी अ रियली बिग मैन और फिर अ वाइज एंड सक्सेसफुल मैन, ये उसके दिमाग में आया कि ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है. I should go back to Arun, I told myself, if only to learn how to write. अब फिर उसका दिमाग है ना, जो मैंने बोला कि ट्विस्ट इन द टेल, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस हमको पहले ही दिखने लगे थे कि स्टेशन पे भागा तो ट्रेन छोड़ गई, क्योंकि उसको एट दी बैक ऑफ दिस हिज माइंड उसका ये चल रहा था कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, राइट. तो वो उसके कारण he just went back. He decided कि अब मैं चला जाता हूँ. Perhaps it was also concern for Arun that drew me back. तो एक रीजन तो ये था उसका अरुण के पास वापस जाने का कि मैं उससे इन्हें लिखना सीख लूंगा तो मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा. और दूसरा जो रीजन है कि वो अरुण के पास वापस जाना चाहता है, राइट, वो है कि उसके प्रति जो उसका अटैचमेंट हो गया था. He was concerned about Arun. A sense of sympathy is one of my weakness, and through hesitation over a theft, I had often been caught. And he says कि actually वो खुद की अपनी एक वीकनेस बता रहा है. उसकी वीकनेस क्या है कि वो लोगों से सिंपथाइज करता है, उसको लोगों पे दया आ जाता है, और इस दया के कारण वो कई बार क्या हो चुका है, पकड़ा भी जा चुका है. यानी चोरी की किसी से और फिर दया आ गई तो सोचा चलो मैं वापस कर दूं या कुछ ऐसा कर दूं, और उस चक्कर में वो क्या हो जाता था, पकड़ा जाता था. और वही बोल रहा है, सक्सेसफुल थीफ मस्ट बी पिटीलेस. नाउ जस्ट रिमेम्बर दिस टर्म पिटीलेस, ठीक है, कि जो चोर हो, यानी एक चोर में जो क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, एक रॉबर में, एक चोर में, थीफ में जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, ही शुड बी पिटीलेस. उसको दया की भावना उसके अंदर होनी ही नहीं चाहिए. जहां आपने दया की तो आप एक अच्छे चोर बन ही नहीं सकते हो, और इसके अंदर वो क्वालिटी थी. आई वॉज फॉन्ड ऑफ अरुण, और एक्चुअली उसको अरुण अच्छा लगने लगा था. यानी वो अच्छा लगने के लिए अरुण ने भी बहुत एफर्ट्स, इन द सेंस उसका जो अरुण का जो नेचर था, राइट, ही वाज सिंपल, ही वाज ट्रस्टिंग पर्सन. तो वो ऐसे लोगों से ना, वो एक ऐसा इंसान था कि उसको कोई भी पसंद करे. तो ऑब्वियसली दीपक भी उसको पसंद करने लगा था. My affection for him, my sense of sympathy, but most of all, my desire to write whole sentences drew me back to the room. तो 3 reasons हैं यहाँ पे कि वो क्यों वहां चला गया वापस, वो अरुण और जो सबसे बड़ा रीजन जो है कि उसको होल सेंटेंसेस वो पढ़ना लिखना चाहता था. तो ये 3 रीजन के कारण वो उसके रूम में वापस चला गया. I hurried back to the room extremely nervous, for it is easier to steal something than to return से आप लौटाते हो तो वो बहुत यानी खतरों से खेलना हो जाता है. If I was caught beside the bed now with the money in my hand or with my hand under the mattress, there could be only one explanation, that I was actually stealing. तो उसको पता था कि अगर अभी मैं पकड़ा गया, यानी मैं जाऊंगा, पैसे वही बेड मैट्रेस गद्दे के नीचे जब मैं रखूंगा, और रखते रखते अगर मैं वो जाग गया, अरुण जाग गया और उसने मुझे ये करते हुए देखा, तो वो तो ये नहीं सोचेगा कि मैं पैसे लौटाने आया हूँ, वो क्या सोचेगा, मैं चोरी कर रहा हूँ, और उसको फिर वो पुलिस को दे देगा, राइट. तो इफ अरुण woke up, I would be lost. तो वो वही कि अरुण जाग गया तो बस मैं क्या हो जाऊंगा, मेरा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. I opened the door clumsily and stood in the doorway and clouded moonlight. अब धीरे से उसने दरवाजा खोला, वापस चला गया, दरवाजे पे कुछ देर खड़ा रहा. Gradually my eyes became accustomed to the darkness of the room. और हम जब उजाले से अंधेरे में आते हैं तो हमको पहले तो कुछ नजर नहीं आता, फिर धीरे धीरे हमको सब दिखने लगता है. तो जब उसको अंधेरे अंदर सब दिखने लगा
तो he saw कि अरुण was still asleep. अरुण तो सो ही रहा था. I went on all fours again and crept noisily to the head of the bed. तो धीरे से फिर से वो क्रॉल करते हुए वहां गया और उसके बेड के पास पहुंच गया. My hand came up with the notes. I felt his breath on my fingers. अब उसने पैसे नोट की गड्डी निकाली और वो जो सांसें हैं उसको अपने फिंगर्स में फील हो रही थी. I was fascinated by his tranquil features and easy breathing and remained motionless for a minute. और उसको वो देखता ही रह गया और उनको वो देखता रहा. ट्रैंक्विल यानी एकदम क्वाइट काम, उसका यानी एक भी टेंशन नहीं, बहुत यानी आराम से वो सो रहा था, टेंशन फ्री. ने उसके चेहरे से वो जो शांति बोलते हैं ना, शांति झलक रही थी, राइट. And then my hands explored the mattress, found the edge, slipped under it with the notes. फिर उसने धीरे से पैसे जहां से लिए थे वहां पे वापस रख दिए. I awoke late next morning to find that Arun had already made the tea. अब ये दूसरे दिन सुबह उठा तो अरुण ने ऑलरेडी चाय बना चुका था. I found it difficult to face him in the harsh light of day. अब रात को जब हम है ना कुछ गलत काम करते हैं तो हम लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड हमको लगता है कि शायद सामने वाले को पता चल गया होगा, तो वो उसको फेस नहीं करना चाहता था दिन के उजाले में. His hands were stretched towards me. और अरुण खड़ा था और उसके ऐसे हाथ सामने से थे. There was a 5 rupee note between his fingers. My heart sank. और उसमें 5 का नोट था. अब जैसे ही इसने 5 का नोट देखा तो इसका दिल जो है बैठ गया. I made some money yesterday, he said. Now you'll get paid regularly. और फिर उसने इसको क्या बताया, कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं और अब मैं तुमको क्या करूंगा, रेगुलरली पे करूंगा, ना हर महीने के महीने में तुमको पैसे दूंगा. My spirit rose as rapidly as it had fallen. और फिर यानी एकदम वो नर्वस हो गया था ना, घबरा गया था, और जितने जैसे वो घबराया था उतनी ही तेजी से एकदम वो खुश भी हो गया. I congratulated myself on having returned the money. और खुशी उसको इस बात की कि मैंने पैसे लौटा दिए, और अब मैंने पैसे लौटा दिए, इसके पास काम करूंगा और मुझे महीने के महीने पैसे भी मिलेंगे, है ना, रेगुलर इनकम मिलेगी. But when I took the note, I realized that he knew everything. The note was still wet from the last night's rain. लेकिन जैसे ही इसने वो नोट हाथ में लिया तो इसको ये रियलाइज हुआ, उसको पता चल गया कि अरुण को मेरी चोरी के बारे में सब पता है. क्यों पता है? क्योंकि वो जो नोट था वो गीला था. Today I will teach you to write a little more than your name, he said. लेकिन अरुण एक ऐसा इंसान था कि उसने इसको एहसास भी होने नहीं दिया. इनफैक्ट उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, कि आज से मैं तुमको तुम्हारे नाम से कुछ ज्यादा पढ़ना सिखाऊंगा. He knew, but neither his lips nor his eyes said anything about their knowing. तो उसको सब पता था, लेकिन ना उसने अपने मुंह से कुछ कहा और ना उसने अपनी आंखों से ये दर्शाया कि मुझे पता है और तुमने कुछ गलत काम की है और अब तुमको इस काम की सजा मिलेगी. ऐसा कुछ नहीं. यानी उसने क्या किया था, उसने नरेटर को, दीपक को क्या कर दिया था, फॉरगिव कर दिया था. और हमको ये पता है कि कई बार ये जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम इनको सजा दें तो शायद सजा देने से ये और बिगड़ जाए. यानी कोई अगर गलती करता है, हमने अगर उसको माफ कर दिया तो सामने वाले को उसका एहसास होगा और अगली बार वो चीज दोहराएगा नहीं. तो यही जो टैक्टिस थी, है ना, वो किसने अपनाई, अरुण ने अपनाई. है ना, अरुण को पता चल गया था कि इसने मेरे घर से चोरी की, ये चोर लेकर भाग गया, लेकिन वो उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. वो किस चीज की तरफ ध्यान दे रहा था, अच्छाई की तरफ, कि इसने चोरी की लेकिन इसको अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने वो पूरे के पूरे पैसे लाकर वापस रख दिए. सो ही हैड फॉरगिवन हिम, राइट. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसने एक चोर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक चोर को एक अच्छा इंसान बनाने का जो स्टार्ट है ना, जो शुरुआत है, वो इसने कर दिया. I smiled at Arun in my most appealing way. और फिर उसने रिमेम्बर जब वो पहले मिला था, है ना, जब उसने गंदा खाना बनाया था, बिल्ली को दे दिया था, उसने भगा दिया था, लेकिन जो दीपक है, जो नरेटर है, वो बहुत ही अपीलिंग वे से उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के उसके इर्द गिर्द घूमा था
और दीपक अरुण ने उसको फिर माफ कर दिया था। अब यहाँ पर फिर से ये उसको देखकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये जो दोनों स्माइल्स हैं इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो स्माइल किसकी थी? पहली वाली स्माइल थी एक चोर की, जो किसी भी एक चालाक लड़के की, कि किसी भी तरीके से वो उसको अपील करना चाह रहा था कि भाई मुझे मत भगा, क्योंकि भगा दोगे तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये वाली जो स्माइल है ना, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट माय नोइंग, और ये वाली स्माइल जो है वो एक ट्रांसफॉर्म्ड मैन की है, एक ऐसा इंसान की स्माइल है जो कि बदल गया है और अपने आप को बदल कर अपनी लाइफ को एक अच्छी शुरुआत देना चाहता है, एक अच्छी डायरेक्शन देना चाहता है। और उसकी वो शुरुआत आज से ही है ना, जब रात को जब वो वापस आ गया तो उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी थी। So he says, I smiled at Arun in my most appealing way, and the smile came by itself without my knowing it. So उसने फिर से उसको एक बहुत अपीलिंग सी स्माइल दी, बट दिस टाइम वो जो स्माइल है उसको स्माइल यानी अंदर से निकली उसकी वो स्माइल, उसको यानी प्रिटेंड नहीं करना पड़ा, यानी बनावटी स्माइल नहीं थी। दिस टाइम द स्माइल केम ऑन इट्स ओन, एंड एज आई टोल्ड यू, अ स्माइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्म मैन, एक ऐसा इंसान जिसने अपने आप को बदल दिया। राइट, सो विद दिस वी कम to the end of this chapter, the first chapter, The Thief, which was written by Ruskin Bond. Right, now I think I'll hand over the mic to Manjushri ma'am. Thank you, Dipti. That was really fantastic. And I was reading the chats in the YouTube chat box, and people, all the students have really appreciated, basically because you have explained in Hindi also, and in a very simple manner. Everybody liked your teaching. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. And dear students, after this session, we are going to send you the link for the feedback form, and also we are going to conduct a quiz. So on the basis of the lesson you studied just now, you will be able to solve the questions. So we'll be giving you 10 minutes, and please see that you submit those forms within 10 minutes. And if the forms are not available on the YouTube chat, I have sent the forms on the group also. So you can just click on the YouTube link, as well as the quiz which I have sent you, the link of the quiz which I have sent you, and you can answer the questions which are given there. We'll wait for 5-10 minutes, and if it doesn't work, then maybe we'll talk tomorrow about the answers you have given. Every day you need to join sharp at 11 a.m. because from tomorrow we'll be starting sharp at 11 a.m. and it will continue up till 12 noon. So tomorrow we'll be taking the second lesson, and till then we'll just wait for 5 minutes. Let me see whether the links are going on YouTube. If they are not working, we'll be sending the links on the groups. Okay, we'll be sending the links on the groups.